Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the growth of regional cultures. Hinduism had seen a sudden revival in 8th to 12th century. हिंदुइज्म रिलीजन में 8 to 12 centuries के बीच में बहुत क्विक रिविजन्स हुए हैं. During early medieval period, there were many regional kingdoms such as Rajputs in the north and northwest, Palas in the east, Pandyas, Cholukyas and later Cholas in Deccan and South India. The Turkish attacks brought with them absolutism in the culture field in the 12th century, and it was featured by adherents to Islamic culture and language. They defended the destruction and looting of temple by Turkish attackers in the name of spreading Islamic culture in India. और तुर्किश पीपल जो थे वो इंडिया में इस्लाम धर्म के प्रचार के नाम पर बेसिकली हिंदू टेम्पल्स को लूट कर रहे थे. एंड द कोर्ट्स ऑफ सुल्तान्स हैड डेवलप्ड अ न्यू इंडियनाइज्ड Muslim culture. They retained several elements of their own custom, culture, literature, language and music. They did not destroy Hindu, Buddhism and Jain cultures. The Islam had become a big force in North India during the 11th century. और 11th century के टाइम पर जो इस्लामिक था, इस्लाम रिलीजन था, वो एक बहुत बड़े मेजोरिटी में नॉर्थ इंडिया में फैल गया था. Sanskrit scholars lost their patronage in favor of new language such as Arabic, Persian. और जो संस्कृत के स्कॉलर्स थे, संस्कृत के विद्वान थे, उनकी अपनी पैट्रोनेज इस टाइम पर लॉस्ट हो गई थी क्योंकि न्यू लैंग्वेजेस आ गई थी जैसे कि अरेबिक एंड पर्सियन. Similarly, changes witnessed in dance, music and paintings. इस तरीके से डांस, म्यूजिक और पेंटिंग हर चीज में एक नया चेंज आ गया था. This pattern continued till the coming of Mughal. और मुगल्स के आने तक टर्किश पीपल का ये कल्चर जो था ये इंडिया में चलता रहा. However, many changes took shape under the Mughals, and there were several great scholars pertaining to various faiths in Akbar court. Jahangir and Shah Jahan were great patron of music, literature and painting. और इसके बाद जब मुगल्स आए तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के राज में इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी बिकॉज ये जो मुगल किंग थे ये बहुत ज़्यादा शौकीन थे म्यूज़िक, डांस, लिटरेचर और पेंटिंग के. Many political events took shape at regional levels during the Sultanate and the Mughal period. Hence, regional culture also flourished in this era. और ये जो लोग थे, ये सल्तनत जो थी मुगल पीरियड की, ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इवेंट हो रहे थे, इसीलिए regional culture also flourished in this era. Now, what is regional culture forms? Nationalism considers culture of the country and political developments in totality. And during the medieval period, there had become two dominant religions, Hinduism and Islam. Medieval period में दो religion famous थे, Hinduism and Islam. Their culture completely influenced the people, and in spite of different cultures, the Indian culture remains intact. The native Hindu culture also pervaded at the regional levels in the 12th century. This culture was spread by the Rajputs, the Palas and the Vijayanagar rulers in their region. हिंदू कल्चर जो था वो हमेशा चलता रहा और इस कल्चर को बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया जब राजपूत रूलर आए एंड द पालास एंड द विजयनगर रूलर्स इन देयर रीजन्स. बुद्धिज्म disappeared from India after the Turkish अटैक्ट इन द 13th सेंचुरी. बुद्धिज्म रिलीजन जो था 13th सेंचुरी के बाद जब टर्किश पीपल ने इंडिया को इन्वेड किया तो उस टाइम बुद्धिस्ट रिलीजन एक तरीके से डिसअपियर हो गया था. इंडिया वॉज कल्चरली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द मिडल ऑफ 14th सेंचुरी. इंडिया एक तरीके से 14th सेंचुरी के मिड में कल्चरली बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया था, चेंज हो गया था. अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन बिरानी, the objective of the regional culture was to put forth the history of Islamic victories in some regions. There were 7 geographic regions of this regional culture form. First is the Ganga plains in north, that is Delhi and Awadh. Persian culture did spread in the form of literature, language, dress, poetry and dance.
नॉर्थ में जो गंगा प्लेन्स के एरिया थे जैसे कि दिल्ली और अवध, यहाँ पर पर्शियन कल्चर फैल गया था। पर्शियन कल्चर के अकॉर्डिंग लिटरेचर, लैंग्वेज, ड्रेस एंड पोएट्री एंड डांस फॉर्म चेंज हो गए थे। सेकेंड, इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन दैट इज राजपूताना, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान, एंड इस्लामिक, पंजाबी, सिंधी एंड पुश्तो कल्चर्स। नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है, जहाँ पर आपका पंजाब आता है, सिंध आता है, पाकिस्तान आता है, यहाँ पर कौन से रिलीजन आ गए थे? इस्लामिक, पंजाबी, सिंधी एंड पुश्तो कल्चर्स आ गए थे। थर्ड इज इन द ईस्टर्न रीजन दैट इज बिहार, बंगाल एंड ओडिशा, बंगाली, ओडिया एंड इस्लामिक कल्चर। ईस्टर्न रीजन में आपका इस्लामिक कल्चर और बंगाली और उड़िया मिक्स हो गया था। एंड फोर्थ इज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन दैट इज असम एंड नेबरिंग रीजन्स, आसमीज, अहोम एंड अदर ट्राइबल कल्चर्स। मोस्टली यहाँ पर ट्राइबल कल्चर फ्लोरिश था। एंड फिफ्थ इज इन द वेस्टर्न रीजन दैट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात, Marathi established great influence and many Muslim communities had settled in Gujarat. वेस्टर्न रीजन जो है महाराष्ट्र और गुजरात में, यहाँ पर मराठी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो गुजरात में सेटल डाउन हो गई थी। सिक्स्थ इज इन सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन रीजन्स दैट इज गोंदवाना एंड बुंदेलखंड, उर्दू वॉज अमर्ज्ड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ अफगान एंड पर्शियन कल्चर। सेंट्रल इंडिया में कौन सा कल्चर था? अफगान एंड पर्शियन कल्चर। In the southern region, in Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, many Muslims and Christian communities had settled. सर्दर्न रीजन में जैसे कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मुस्लिम और क्रिश्चियन रिलीजन का एक मिक्सचर कल्चर था। These regions were ruled by several kingdoms, और ये जो हमने अभी 7 कल्चर रीजन पढ़े हैं ये अलग अलग किंगडम यहाँ पर रूल करते थे। Now we are talking about Bengal. Commercial ties began to develop between Bengal and Magda during the 3rd and 4th centuries. 3rd और 4th centuries के साथ ही बंगाल और मगधा का एक टाई अप शुरू हो गया था। It led to the growing influence of Sanskrit. Gupta ruler established political control over North Bengal during 4th centuries. The Brahmins settled there and linguistic and culture influence from mid Ganga valley spread there. और यहाँ पर कौन से रूलर थे? गुप्ता रूलर थे। एंड जो ब्राह्मण्स थे इन्होंने यहाँ पर अपना जो कल्चर है वो फ्लोरिश कर लिया था फ्रॉम मिड गंगा वैली। एंड चाइनीज ट्रेवलर ज़्यूनज़ैंग said that all languages related to Sanskrit were in use all over Bengal in the 7th century. और ज़्यूनज़ैंग जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवल था उसने अपनी बुक में लिखा है कि ऑल ओवर बंगाल जो है वहाँ पर संस्कृत की फॉर्म ही फैली हुई थी। नाउ बंगाली हैड डिसेंडेड फ्रॉम संस्कृत। बंगाली जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से ही फॉर्म आउट हुई है, संस्कृत से निकली है। रामचरितम कंपोज्ड बाय संध्या कर्नादी गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट पाला डायनेस्टी। रामचरितम एक बुक है जिसमें पाला डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। Bengal became the center of a regional kingdom under the Pala from the 8th century। और 8th century से ही पाला किंगडम के बारे में एक क्या रहा है, ये एक रीजनल किंगडम रहा है, सेंटर ऑफ अ रीजनल किंगडम। जब पाला डायनेस्टी ने यहाँ रूल किया तो बंगाल एक उभर के सामने आया एज ऑफ द सेंटर ऑफ अ रीजनल किंगडम अंडर द पाला फ्रॉम द 8th century। मिनाज़े सिराज रोट ताबकत-ए नसीरी। इट टेल्स अबाउट अर्ली दिल्ली सल्तनत रूलर्स until 1258। एंड उसके अलावा तारीख के फिरोज शाही दैट इज कंपोज्ड बाय जियाउद्दीन बरानी दैट कंटेन आई विटनेस अकाउंट ऑफ बंगाल, कि बंगाल में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। हाजी इलियास शाह had declared independence from Tughlaq Sultanate during Firoz Shah Tughlaq region in 1345. Bengal became an important center of trade and commerce. Bengal was ruled by sultans who were independent of the rulers in Delhi.
अ मल्टी रिलीजियस कल्चर हैड डेवलप्ड इन बंगाल, और इस तरीके से बंगाल में एक मल्टी रिलीजियस कल्चर आ चुका था। शेरशाह सूरी एनेक्स बंगाल इन 1538 एंड रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ सूरी किंगडम अंटिल 1564। उसके बाद शेरशाह सूरी बंगाल को एनेक्स कर लेते हैं एंड 1564 तक जो बंगाल रीजन है ये शेरशाह सूरी का रीजन रहता है, सूरी किंगडम रहता है बंगाल में। मैनी अफगान्स हैड सेटल्ड इन बंगाल, इस ड्यूरिंग में बहुत सारे अफगानी जो हैं वो बंगाल में सेटल्ड हो जाते हैं। मोर टू नो, ancient Bengali literature may be divided into two categories. First is in Sanskrit and second is independent of it. Now the Bhakti and Sufi saints had also promoted local tradition, और इस टाइम पर भक्ति और सूफी सेंट थे वो भी अपने लोकल ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे थे। अकबर कॉन्क्यूर्ड बंगाल इन 1586, और 1586 में अकबर ने बंगाल को कॉन्क्यूर किया। ही फॉर्म द बंगाल सूबा, और बंगाल को एक सूबा में चेंज कर दिया। बंगाली डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज, उस टाइम पर बंगाली एक रीजनल लैंग्वेज बन चुकी थी। वाइल पर्सियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी लैंग्वेज थी? पर्सियन लैंग्वेज। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज प्रोवाइडेड न्यू वाइटलिटी टू रिलीजन एम्पायर। बिल्डिंग अदर ग्रुप्स वर मर्चेंट्स, जमींदार्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट, और इस टाइम पर अलग अलग जो लोग थे वो सामने आए, जैसे कि एक ग्रुप था मर्चेंट्स का, एक जमींदार्स का, और उसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। एंड बुर्दवन बिकम अ वाइटल एम्पीरियल आउटपोस्ट एंड द मुगल आर्मीज मार्च अगेंस्ट द अफगान्स फ्रॉम हेयर, और मुगल आर्मीज अफगान के अगेंस्ट आए इस टाइम पर। मुगल हैड शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ बंगाल टू डेक्कन एंड बिल्ट रोड्स, मुगल्स ने क्या किया, जो कैपिटल ऑफ बंगाल थी उसको शिफ्ट कर दिया टू डेक्कन, और एक रोड भी बनवाई उस टाइम पर। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1696 टू 1698 औरंगजेब हैड अपॉइंटेड मुर्शिद कुली खान एज द दीवान ऑफ बंगाल, और जब रिवोल्ट होती है 1696 की, उस टाइम पर औरंगजेब जो कि एक मुगल रूलर था वो मुर्शिद कुली खान को दीवान ऑफ बंगाल घोषित कर देते हैं। इट रिजल्टेड इन शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम दिल्ली टू नवाब्स इन द 18th सेंचुरी, और इस तरीके से जो पावर थी वो दिल्ली से कहाँ किसके हाथों में आ जाती है? नवाब के हाथों में। ओके, Bengal had again become independent from the Mughals under these Nawabs after Aurangzeb death, और उसके बाद बंगाल दोबारा क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है फ्रॉम द मुगल्स। जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है उसके बाद बंगाल फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। नाउ द सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चर कंडीशन ऑफ बंगाल हैड चेंज्ड इन मैनी वेज। Foreign travelers like Ibn Battuta, Huan and Barbosa gave us information about this। इस तरीके से जब अलग अलग रूलर आए हैं तो बंगाल का जो सोशो इकोनॉमिक कल्चर था वो बिल्कुल चेंज होता रहा है टाइम टू टाइम। फॉरेन ट्रैवलर जो आए बंगाल में, इंडिया में, जैसे इबन बतूता या हुआन या बरबोसा, इन्होंने ऐसे अपने अकाउंट में ऐसी इंफॉर्मेशन दी है। The Persians had also settled in Bengal, और बंगाल में कुछ पर्सियन लोग भी रहते थे। Early Bengali literature may be divided into two categories. The first includes translation of the Sanskrit epics, the Mangal Kavyas and the Bhakti literatures, and the second includes Mat literatures like songs of Mayanmati and Gopi Chandra and some stories. The Bengali culture attained a class by itself during 18th century. Shah Alam II allowed the East India Company to open trade center in 1765. It was the beginning of European colonialism in India. और उस टाइम पर जब लिटरेचर वहाँ का कल्चर चेंज हो रहा था उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक ट्रेड सेंटर बंगाल में ओपन किया, और ये स्टार्टिंग थी जब यूरोपियन पीपल ने इंडिया को कॉलोनी बनाना शुरू किया था। इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। नाउ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। Most of the modern Indo-Aryan languages were emerged in the 10th century, and these languages were influenced by Dravidian, Farsi, Arabic, Turkish, Portuguese and Bengali.
भाषाएं जो थी, लैंग्वेज जो थी वो इंटरमिक्स होनी शुरू हो गई थी। अलग अलग लैंग्वेज का प्रभाव आ रहा था बंगाली लैंग्वेज पर, जैसे कि द्रविडियन, फारसी, अरेबिक, टर्किश, पुर्तगीज एंड बंगाली। संस्कृत वॉज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण्स इन द मेडिवियल पीरियड। और संस्कृत लैंग्वेज थी, उसको संस्कृत लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण माना जाता था। कल्हाना रोट रजत रंगिनी एंड Jayadev composed Geet Govind in Sanskrit. Sanskrit was also used by चांदबरदाई इन पृथ्वीराज रासो। तो इस तरीके से संस्कृत जो थी वो मेन लैंग्वेज थी, ब्राह्मण की लैंग्वेज मानी जाती थी। बहुत सारी जो बुक्स हैं वो इसमें संस्कृत में लिखी गई थी उस टाइम पर। Modern Indian languages came under the influence of Persian and Arabic during the Sultanate rule. अमीर खुसरो रोट इन पर्सियन, उर्दू एंड हिंदी। जैसे कि अमीर खुसरो एक कवि थे, उन्होंने पर्सियन, उर्दू और हिंदी में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। He lived in the courts of Khilji and Tughlaq sultans. And Jalaluddin Baruni wrote of Tariq-e-Firoz Shahi in Persian. It gives glimpse of Firoz Shah Tughlaq region. And much of the literature during this period was written in Persian language. और बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे जो लिटरेचर है इस टाइम के, वो ज़्यादातर या तो संस्कृत या फिर पर्सियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। Regional languages grew during the 2 centuries of Mughal rule, and vernacular literature in Hindi, Punjabi, Urdu, Bengali and other languages were written. Regional languages like Hindi, Sanskrit and Bengali. These grew out due to the support of Mughals, as they were themselves learned men. एंड अकबर सेक्युलर पॉलिसीज ऑल्सो हेल्प्ड। ये लैंग्वेजेस जो थी ये मुगल्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस हुई, क्योंकि मुगल पीपल जो थे वो इसी लैंग्वेज के सपोर्ट में थे, ऑलरेडी उनको ये लैंग्वेजेस आती थी। मैनी बुक्स वर रिटन इन पर्सियन ड्यूरिंग दिस पीरियड लाइक तुज़ेक के बाबरी बाय बाबर, हुमायूंनामा बाय गुलबदन बेगम, अने-अकबरी बाय अबुल फैजल एंड पादशाहनामा बाय अबुल हमीद लाहौरी। भगवद गीता वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन बाय फैजी। तो इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस किस में लिखी गई? पर्सियन लैंग्वेजेस में। नाउ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, ये तो हमने बात की पूरे बंगाल के बारे में। अब वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस और लिटरेचर क्या था? द रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर आर रेफर टू एज वर्नाकुलर। वर्नाकुलर क्या होता है? इट मीन्स दैट पर्टेनिंग टू अ कंट्री और रीजन, कि एक रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। द रीजनल किंगडम्स ऑफ बंगाल, गुजरात, कश्मीर, खंदेश एंड अहमदनगर पैट्रोनाइज्ड द vernacular languages. Sanskrit and Urdu were also promoted by regional kingdoms, and the Bhakti and Sufi saints communicated people with their own languages and promoted vernacular languages. जहाँ की एक specific country या region की जो languages होती है that is vernacular languages. बहुत सारे लोग vernacular languages को support कर रहे थे अपनी language के साथ साथ, and Bhakti saints like Tukaram, Narsi Mehta, Chaitanya and Tyagaraja popularized languages like Marathi, Gujarati and Tamil. Regional languages like Punjabi, Odia, Telugu, Malayalam, Kannada and Gujarati also. Now Hindi. Hindi language first evolved during early medieval period. Hindi achieved its literacy status under the influence of Bhakti reformers during 15th and 16th centuries. Among the notable Hindi scholars of Akbar's court were Raja Todarmal and Bhagwan Das, Man Singh, Birbal, Abdul Rahim Khan and Khanan. Tulsi was wrote Ramcharitmanas during this time. A Muslim poet Rakshan wrote a famous work that is Pema Vatika in Hindi. Surdas, the blind poet of Agra, wrote Sur Sagar, beautiful poems on Hindi. And during the reign of Aurangzeb, Hindi received setback but revived later. औरंगजेब के टाइम पर हिंदी फिर से एक वापस आ गई थी, एक रीजनल लैंग्वेज की फॉर्म में वापस आ गई थी, जैसे कि रामचरितमानस या प्रेमा वाटिका या सूर सागर, ये सारी की सारी जो बुक्स हैं वो हिंदी में लिखी गई थी। लेकिन फिर से दोबारा रिवाइव कराने के लिए, दोबारा फोकस में आने के लिए हिंदी को बहुत टाइम लगा। उसके बाद है लैंग्वेज है नेक्स्ट उर्दू। The term Urdu means a camp.
This language was developed by Persian and Indian soldiers in the army camps while talking to one another. उर्दू का मतलब होता है कैंप. उर्दू लैंग्वेज कब आई? जब पर्सियन पीपल और इंडियन सोल्जर जब आर्मी कैंप में रहते थे तो एक दूसरे से बात करते थे, तो ये एक न्यू लैंग्वेज बनी. द उर्दू डिपेंड अपॉन पर्सियन फॉर वोकेबलरी. वोकेबलरी इसकी कहाँ से आती है? पर्सियन लैंग्वेज से. The language also bears the influence of Sanskrit, Hindi, Turkish and Arabic. Urdu was written in Arabic script. कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? ये लिखी जाती है अरेबिक स्क्रिप्ट में. And writing started in the Brahmani kingdoms of Deccan. Most of the Urdu poets were Muslims or of Persian origin, so it is generally came to be associated with Muslim communities. ज़्यादातर जो भी इस लैंग्वेज में लिखते थे उर्दू लैंग्वेज में वो मुस्लिम कम्युनिटी के होते थे, इसीलिए इस लैंग्वेज को मुस्लिम कम्युनिटी की लैंग्वेज बना दिया गया. गजल वॉज ऑल्सो पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. इस टाइम पर गजल भी बहुत फेमस हुई. उर्दू वॉज यूज्ड इन इट्स लिटरेरी फॉर्म फ्रॉम 17th century. In the beginning, Delhi and Awadh were centers of Urdu, and Maulana Muhammad Afzal wrote Muqatt Kahani and Munshi Wali Ram wrote Masnavi were the famous poets of Urdu during medieval period. Next language is Bengali. It emerged as a literary language in 12th century. A famous Tibetan chronicler, Peg Sam Zong Zhang, tells about many scholars and writers of Bengali literature of this period. It was compiled only in 1747. Bengali further developed under the Khilji sultans, and Kriyapadas is a specimen of Old Bangla language, and Surya Purana was written in Bengali in the early medieval period. Next is Gujarati. The Bhakti saint contributed to the progress of Gujarati culture and language. Gujarati attained literary status during 13th century, and Narsi Mehta was a Gujarati poet. Many Marathi work in prose had also become popular during this century. Next is Telugu. Vijayanagar kingdom patronized Telugu and it was the court language of the kingdom. उस टाइम ये court language थी kingdom की, and due to decline of Vijayanagar kingdom, many Telugu writers and artists went to Tamil region. Nayak rulers of South region patronized them during the 16th and 17th centuries and became famous. Rulers of Golconda also patronized Telugu languages. Next is Malayalam. मलयालम किसने फ्लोरिश की? द चेरा रूलर. The Chera rulers introduced the Malayalam language and script in their inscription during 9th century. The first literary works in Malayalam are directly indebted to the Sanskrit dated about 12th century. They translated Ramayana, Mahabharata and other epics in Malayalam, and Tunkatu Irukchun is considered the father of Malayalam literature. Next is Kannada. It achieved its literary status in the 10th century due to Jain literature written in Kannada language. Next is Punjabi. The origin of Punjabi literature is also traced in this period, and Baba Sheikh Farid sang both in Punjabi and Persian. जो बाबा शेख फरीद sang दोनों लैंग्वेजेस में गाते थे, पंजाबी एंड पर्सियन में. ही वॉज द फर्स्ट सूफी पोइट हु यूज स्टैंडर्ड पंजाबी लैंग्वेज. फर्स्ट सूफी पोइट थे जिन्होंने स्टैंडर्ड पंजाबी लैंग्वेज ये यूज की थी. सिख गुरु ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड द प्रोग्रेस ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि आदि ग्रंथ जो है वो किस में लिखा हुआ है? पंजाबी लैंग्वेज में. नेक्स्ट इज पेंटिंग्स एंड अदर विजुअल आर्ट्स. The art of painting did not receive the attention of the Delhi Sultanate. The Mughal emperors Akbar, Jahangir and Shah Jahan patronized highly skilled painters. Delhi Sultanate में पेंटिंग पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जो मुगल एम्प्रर थे जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये खुद ही बहुत ज़्यादा शौकीन थे पेंटिंग के और खुद भी स्किल्ड पेंटर्स थे. These painters illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. They portrayed court scenes, scene of battle or hunting, and
अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, ये बहुत सारे सीन्स को डिपिक्ट करते थे, जैसे कि सोशल कोर्ट के या हंटिंग का सीन, एंड दे वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट, और ये जो पेंटिंग बनाते थे ये आपस में एक दूसरे को गिफ्ट में एक्सचेंज करते थे। There were many Indian and foreign painters in the court of Akbar. अकबर के कोर्ट में बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे फॉरेनर पेंटर्स भी थे, बहुत सारे इंडियन और फॉरेनर पेंटर्स भी थे। मोस्ट फेमस among them were अबू समद and फारूक बेग, जमशेद, दसवंत and बासवान. Emperor Jahangir was an expert painter himself. Emperor Jahangir खुद एक बहुत अच्छे पेंटर थे। The most famous painters of his court were Ustad Mansur, Abdul Hasan, Bishan Dasa and Manohar. Geet Govinda was used for illustration. The art of painting received severe blow in the time of औरंगजेब. औरंगजेब के टाइम पर जो पेंटिंग है वो और ज़्यादा फ्लोरिश हुई. Many painters fled to Rajasthan and Himachal Pradesh. They developed the Rajput school of paintings in Rajasthan and Pahadi school of painting at Kangra in Himachal in mid of 18th century. और इस तरीके से उन्होंने राजस्थान में एक राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग ओपन किया और एक पहाड़ी स्कूल ओपन किया कांगड़ा में लोगों को पेंटिंग सिखाने के लिए. नेक्स्ट इज डांस एंड म्यूजिक. The dance and music were arts in ancient times. The Sufi Bhakti and traveler like Amir Khusro laid the foundations of various schools of music and dance during the medieval period. जो कि अमीर खुसरो, जो कि एक फेमस पोइट थे, एक सूफी भक्ति ट्रैवलर थे, उन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक और डांस के स्कूल इस्टेब्लिश किए हैं मेडिवियल पीरियड में. कव्वाली, अ न्यू फॉर्म ऑफ रागास एंड डांस अमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इस टाइम पीरियड पर जो कव्वाली, जो कि एक फॉर्म ऑफ राग है, एक फॉर्म ऑफ डांस है, वो इस टाइम पर ही फ्लोरिश हुई थी. द मुगल रूलर्स एक्सेप्ट औरंगजेब वर ग्रेट लवर्स ऑफ म्यूजिक. सब जितने भी मुगल रूलर आए, औरंगजेब को छोड़कर सब लोग बहुत ज़्यादा शौकीन थे म्यूज़िक के. अकबर हिमसेल्फ वॉज अ स्किल्ड म्यूजिशियन. अकबर खुद भी एक बहुत अच्छे संगीतकार थे. तानसेन वॉज द मोस्ट डिस्कनिश्ड म्यूजिशियन ऑफ अकबर कोर्ट. जैसे तानसेन का नाम आपने सुना होगा, अकबर के कोर्ट के एक होनहार म्यूजिशियन थे. अकॉर्डिंग टू अबुल फैजल, तानसेन इन्वेंटेड न्यू राग्स. और अगर अबुल फैजल की बुक के बारे में बात की जाए तो उन्होंने लिखा है तानसेन ने बहुत सारे न्यू राग को इंट्रोड्यूस किया है. द अदर फेमस म्यूजिशियन ऑफ अकबर टाइम वर बाबा रामदास, बिरजू बावरा एंड सूरदास. Various new styles of music like Qawwali, Khayal, Thumri and Ghazal were developed. Indian classical music. Hindustani and Carnatic schools of music emerged between 13th to 18th centuries. The Hindustani school of music was influenced by Islamic tradition and the Carnatic school influenced by South Indian tradition. Musical instruments like sitar, sarod and tabla were also invented during this period. और इस टाइम पीरियड पर अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सितार है, सरोद है, वीणा है, तबला है, ये इंट्रोड्यूस हो चुके थे. डांस एंड म्यूजिक वर यूज्ड इन टेम्पल्स एज अ मीन्स ऑफ डिवोशन एंड अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवियल पीरियड. डांस और म्यूजिक को अर्ली मेडिवियल टाइम पीरियड पे टेम्पल्स में यूज़ किया जाता था भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए. The Bharatnatyam emerged from the temple practices and the famous Indian classical dance is Kathak of उत्तर प्रदेश. भरतनाट्यम जो है टेम्पल से ही शुरू हुआ है. उसके अलावा जो कथक, जो हमारा क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का, वो भी टेम्पल डांस फॉर्म से ही शुरू हुआ था. द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज. कथक का मतलब है, किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? कथा. कथा का मतलब होता है कोई भी स्टोरी. ओके, इट इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी. भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, ओडिसी ऑफ ओडिशा एंड कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश, कथकली एंड मोहिनीअट्टम ऑफ केरला, Manipuri of Manipur and many other types of dances. The classical dance forms draw their sources of Bharata's Natya Shastra. Each of these dances is noted of its ras, rhythm, that is nritya, and expression, that is natya.
and there are the 9 ras or emotion: happiness, hasya, anger, krodh, and disgust, that is bibhatsa, and fear, courage, compassion, wonder and serenity. ये अलग अलग भावों को पेश किया जाता है डांस के माध्यम से. Now history in regional languages. Voyage to Surat was written by Fern Bernier and a European traveler in 17th century. 17th century में एक यूरोपियन ट्रैवलर एफ बेरेनियर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वॉयज टू सूरत, यानी सूरत की यात्रा. He described Taj Mahal as the great and vast dome of white marble. उन्होंने ताज महल को एक बहुत अद्भुत और एक बहुत बड़ी डोम, वाइट मार्बल की बहुत बड़ी डोम के रूप में पेश किया है. He says that branches of history and social history are as important as the political history. Many writers have written provincial history like Ziauddin Barani, who wrote detail about Bengal Sultanate. He had never visited Bengal. He gathered all information from returned soldiers, and such things helped in most cases to give India its own culture, identity. और इन तरीकों से हमें अपनी identity का पता लगता है. Later political leaders and freedom fighters used it, forging national integration, and regional groups played an important role during India's freedom movement to unite the whole country. Regional culture has contributed immensely to India's national culture, and India has an special identity in the world due to its unique culture. India की world में एक अलग identity है क्योंकि इंडिया का अपना यूनिक कल्चर है. इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, डांस फॉर्म है, आर्किटेक्चर अलग है, जिससे इंडिया जो है वो एक स्पेशल आइडेंटिटी डिजर्व करता है. Now some important points. The courts of Sultan had evolved a new Indianized Muslim culture. Several political events took place at regional level during the Sultanate and Mughal period. Hinduism and Islam had become two dominant religions during medieval period. Bengali has descended from Sanskrit. Sher Shah Suri annexed Bengal in 1538. The Bhakti and Sufi saints promoted local traditions. And Aurangzeb had appointed Murshid Quli Khan as the Diwan of Bengal. Shah Alam II gave the grant of Diwani to the Diwani of Bengal. Amir Khusro wrote in Persian, Urdu and Hindi. The regional languages and literatures are referred as vernacular. The term Urdu means a camp. Classical dance forms of India are Bharatnatyam, Kuchipudi, Odissi, Manipuri and Kathakali, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग डांस फॉर्म के नाम से फेमस हैं. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.